I am investing in the mutual funds from last 10 years. So I was doing that in a wrong way. After a 1% club, I got a clarity that these mutual funds are for these much goals and these mutual funds are for these things. अगर कोई 27-28 years old want to start investing, वो क्या गलती कर सकते हैं मोस्ट कॉमन? आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना, अपने गोल्स बनाइए। ये मेरे गोल्स हैं, मुझे इतने टाइम में, ये लॉन्ग टर्म है, ये मिड टर्म है, ये शॉर्ट टर्म है, मुझे ये चाहिए। आपका अगर प्रॉपर एक प्लान नहीं है कि आपको एक्चुअली कहाँ से कहाँ मतलब इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ यूज़ करना चाहिए, आपका कोई इमरजेंसी फंड नहीं है, तो आप मिस कर जाओगे लॉन्ग टर्म में आके। What steps have you taken for your goal-based investing and emergency planning? Firstly, I converted all my regular funds to the Hi Taranjeet, welcome. Hi. How are you? Fine. Hi, Sanskar. Thank you for inviting me Awesome, for my awesome, first awesome. podcast. Awesome, awesome, awesome. Start करने से पहले, can you tell the audience about yourself, who you are, what do you do, and what's your annual income? Okay. My name is Taranjeet. I am currently working as an officer in central government department, one of the department of the central government. So my annual income is around 13 lakhs annually. So actually, we work in a policy framework. So that is my profile actually. Yeah. Sir, could you tell me what made you join the 1% club? Uh, okay. Actually, I was going through the reels of the Sharan, Mr. Sharan, okay, from last 1 to 2 years. Okay. So it was coming on YouTube and Instagram. So I was following that thing. And that clicked me that there is something that I am missing from these guys. Okay. So I have a curiosity that at least I should try. कि ट्राई करके देखते हैं कि कुछ अलग है इसमें कि नहीं है. तो therefore I joined it. So there was a boot camp, master classes. So I loved it. So therefore I joined 1.5 years back. पॉडकास्ट के पहले you were telling me Taranjeet जी कि you have had a different approach to your financial planning as compared to before and after joining the 1% club. Yeah. So can you give me a detailed comparison of that? Yeah. I am 35 years of age right now. So I am investing in the mutual funds from last 10 years. So I was going through the YouTube or other videos. So we get to know that there are mutual funds. You have to invest them through SIP regularly. So I was doing that in a wrong way. Like I was booking in a regular mutual funds. So that were not direct. So I was missing some part. And also there was a not clear understanding that you have to follow these type of mutual funds, you have to book only thematic mutual funds or a Sensex index or anything like that. So after a 1% club, so I got a clarity that okay, these mutual funds are for these much goals and these mutual funds are for these things. So I properly planned everything as per the goal. So there is that I have to book, I have to have a mutual fund of direct mutual fund like index. Right. One is small cap, one is mid cap, and one is flexi or multi cap. So that is the actual planning that goes. Therefore, I switched from the regular to the direct mutual fund and started my investment plans. Taranjeet, having your finances properly managed, how does that feel? Oh, actually, it feels liberating. Okay. पहले कुछ भी हम प्लान कर रहे थे, पहले कुछ भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, तो उसमें एक्चुअली हो क्या रहा था, लाइक कभी भी कोई इमरजेंसी आए, आ सकती है, तो इमरजेंसी में कुछ भी होता है तो हम पहले ही जाते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स की तरफ. बट आपका अगर प्रॉपर एक प्लान नहीं है कि आपको एक्चुअली कहाँ से कहाँ मतलब इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ यूज़ करना चाहिए, आपका कोई इमरजेंसी फंड नहीं है, तो आपकी जो कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, आप वो मिस कर जाओगे लॉन्ग टर्म में आके. तो आपके हर इन्वेस्टमेंट गोल बेस्ड होने चाहिए. तो अगर आपके गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट हैं तो उससे क्या होगा कि आपको आइडिया आया कि लाइक मुझे ये वाला इन्वेस्टमेंट तभी यूज़ करना है जब मेरा ये गोल हिट करेगा. लाइक आई हैव टू यूज़ इट फॉर माई डॉटर्स मैरिज और डॉटर्स एजुकेशन, एनीथिंग लाइक दैट. ओके. तो मुझे आइडिया चल जाएगा पता कि हाँ भाई मुझे ये बुक करना है तो उसे उसके लिए होना चाहिए. और मेरे लिए इमरजेंसी फंड होना बहुत ज़रूरी है. कोई भी इमरजेंसी आए तो मुझे सिर्फ इमरजेंसी फंड छेड़ना पड़े और मेरी कंपाउंडिंग पे इम्पैक्ट ना पड़े. तो उससे आइडिया लग जाता है कि क्या करना चाहिए आपको. So what steps have you taken for your goal-based investing and emergency planning? Okay. So firstly, I converted all my regular funds to the direct funds. Okay. And started planning that
I have 5 to 6 plans. One is for retirement, one is for my daughter's education, one is for marriage, or one is for trip, anything like that. Okay. So I divided that 5 to 6 plans, and for each plan there is specific mutual fund. So Okay. okay, and started SIP for that. I have a goal, like I want 20 lakh for in today's inflation. Right. Okay, so I need that after 20 years. So I know that this much amount will be needed after going through the inflation part. Okay, so I know that this much amount is required, and for this much amount I have to do this much of SIP. Right. So I started doing that SIP for each type of funds. Okay, so I know that that goal will definitely going to hit. Okay, so I feel very much confident that this much is ये मेरे एक्सपेंसेस हैं, मंथली एक्सपेंसेस हैं, ये मुझे इन्वेस्ट करना है, और ये मेरे लिए अपनी वांट्स को पूरे करने के लिए मुझे वेट नहीं करना पड़ेगा कि मुझे 30 इयर्स के बाद जाकर आपकी जब एज सपोर्ट नहीं करेगी आपको कि तब मुझे घूमने जाना है. पर मेरा वो सब प्रॉपर प्लान बेस्ड है, पहले प्लान बेस्ड नहीं था. तो दैट इज द एक्चुअल मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी टू जॉइन दैट क्लब. जस्ट टू गो इनटू डिटेल अ बिट, आपने 2-3 गोल के नाम लिए, Yeah. वेकेशंस, Yeah. डॉटर की वेडिंग, Yeah. ये काफ़ी डिफरेंट टाइम बेस्ड गोल्स हैं. Yeah. तो इनके लिए कौन से म्यूचुअल फंड्स आप प्रेफर करते हो रिस्पेक्टिव गोल्स के लिए? ओके, सो कुछ शॉर्ट टर्म है, कुछ मिड टर्म गोल्स होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं. करेक्ट. जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं तो उसके लिए मैं स्पेसिफिकली यूज कर रहा हूँ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स. बट फॉर जो शॉर्ट टर्म है और मिड टर्म के लिए मैं नॉर्मली यूज कर रहा हूँ इंडेक्स फंड्स. एंड फॉर शॉर्ट टर्म आई एम गोइंग फॉर डेब्ट फंड बिकॉज देयर इज अ रिस्क इन booking that fund in 1 to 2 years because you need some time ओके. to get it power of compounding in that fund. Therefore you will hit that goal. राइट. So for small short if I need a fund in 1 year or 2 year तो मैं possibly मैं ट्राई करता हूँ कि वो डेट फंड में रखा जाए या शेयर्स में हो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लेकर मैं उस गोल को अचीव कर पाऊँ. और जो लॉन्ग टर्म है उसके लिए वो म्यूचुअल फंड्स है, उनको मैं टच ही नहीं कर रहा हूँ कि लाइक मुझे आइडिया है कि ये 25 ईयर्स का बुक करना है, ये 15 ईयर्स का चाहिए, तो उसको मैं नहीं छेड़ रहा हूँ. और उसकी मैं ईयरली रिव्यू कर रहा हूँ. मेरे पास एज शरण ने अकेडमी वीडियोस में है जो मॉड्यूल है, ओके. वो करने के बाद हमें आइडिया लगता है कि लाइक देयर इज अ मास्टर शीट, यू हैव टू मेंटेन, you have to write down all the goals you needed and it will tell you about how much SIP you required monthly. So मुझे आइडिया हर 1 साल के बाद मैं उसको रिव्यू कर रहा हूँ. मुझे आइडिया लग जाता है कि मैं कितना अचीव कर चुका हूँ, कितना अचीव करना है. उस अचीव के लिए मुझे अचीव करने के लिए मुझे कितना स्टेप अप करना पड़ेगा हर एक इन्वेस्टमेंट में. ओके. तो उसके हिसाब से प्लान करते रहते हैं. तो वो चेंजेस होते रहते हैं. तो हमें आइडिया है कि लाइक इस टाइम पे आके हमारा वो अचीव हो जाएगा गोल. तो उस हिसाब से हम प्लान कर रहे हैं. तो तरनजीत, आपने ना अभी शरण का नाम लिया और एक शीट का नाम लिया, तो एग्जैक्टली 1% क्लब में आपने क्या कुछ सीखा है रिगार्ड्स टू योर फाइनेंशियल प्लानिंग एंड किन मेथड्स से सीखा है? तो जब मैंने 1% क्लब ज्वाइन किया तो एक बूट कैंप होता है स्टार्टिंग में इनिशियली फॉर 1 वीक. ओके. तो उसमें हमें एक मेंटर मिलता है. तो मेंटर के थ्रू हमें आइडिया लगता है कि हमें ये एकेडमी में जाकर ये हमें मॉड्यूल्स करने हैं. तो वो हमें सपोर्ट करते हैं कि आपको कोई इशू आ रहा है मॉड्यूल्स में या कुछ हो रहा है, और रेगुलरली चेक करते हैं हमारे साथ मीटिंग्स होती हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग्स होती हैं कि लाइक आप कहाँ पहुँच चुके हो. तो वो कंप्लीट करने के बाद हमें आइडिया लगता है कि एक मास्टर शीट है जिसके थ्रू आप प्रॉपर कंप्लीट प्लानिंग करेंगे. तो उसमें आपको डाटा फिल करना है आपके हिसाब से. आपकी गोल्स जो हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, डेट में कितना है, US इक्विटी में कितना है, आपके शेयर्स में कितना है, म्यूचुअल फंड्स में कितना है, गोल्ड में कितना है, रियल एस्टेट में कितना है, आपको वो डालना है. तो वो शीट बताएगी आपको कि आपको इस गोल को अचीव करने के लिए इतना टाइम लगेगा और इस SIP को आपको इतना डालना पड़ेगा, तो आपका वो गोल अचीव हो जाएगा इतने टाइम पीरियड में. तो आपको बस वो चेक करना है और आपको रेगुलरली उस शीट को अपडेट करना है आफ्टर एन ईयर. आपको ये नहीं है कि हर हफ्ते जाकर आपको शीट खोलनी है कि मार्केट अप हो रही है, मार्केट डाउन हो रही है, मेरे शेयर्स क्या चल रहे हैं, मेरे म्यूचुअल फंड्स में क्या इम्पैक्ट आ रहा है. मुझे वो देखने की जरूरत नहीं है. तो मुझे सिर्फ ईयरली एक बार 1-2 दिन के लिए टाइम लगता है. उसको रिव्यू करिए, उसमें चेंजेस करिए एज पर योर और इन्वेस्टमेंट्स. तो उससे आपको थोड़ा ईजी रहेगा कि कौन सा गोल किस टाइम में अचीव हो रहा है. और आपके चेंजेस आएंगे हर साल. आपको कुछ ना कुछ नया गोल आ जाएगा, नया आइडिया आ जाएगा, कुछ नहीं मुझे ये चेंज करना चाहिए, मुझे इस इन्वेस्टमेंट को निकाल कर दूसरे इन्वेस्टमेंट में जाना है. तो वो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा. तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है वो शीट को. तो उससे आपको ये लगेगा कि जस्ट मुझे एक शीट ही अपडेट करनी है और पूरे ईयर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अपना एंजॉय कर सकता हूँ, मेरे लिए मेरा टाइम है. तो वो काफ़ी ईजी होता है उससे. तो जो मेंटर हैं
इनसे आप जब मर्जी बात कर सकते हैं? ये जो मेंटर्स हैं ये हमें मिले थे स्टार्टिंग में बूट कैंप के टाइम। तो ये 1 वीक के लिए होते हैं, उसके बाद हमें शिफ्ट कर दिया जाता है एक आर का क्लब में। क्लब होता है एक ओके। अचीवर्स क्लब। ओके। तो वो एक ग्रुप है, उसमें हम अपने कोई भी डाउट्स पूछने हो तो वो पूछ सकते हैं। और कुछ भी इशू आ रहा हो आपको, कोई आपकी इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, लाइक कोई पॉलिसी हो आपकी, यूलिप प्लान हो, LIC हो, हमें आइडिया नहीं है कि हम ये इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि राइट। हमें किसी रिलेटिव ने या किसी ने भी बता दिया कि ये उस करना चाहिए था। हाँ, राइट। इनिशियली स्टार्टिंग में नहीं पता है आपको, तो आपने वो कर लिया है, बट आपको ये पता नहीं है आपको ये कंटिन्यू रखना है या आपको इससे हटना है। तो आपको उसमें आपके मेंटर्स बहुत हेल्प करते हैं। और इसमें एक्चुअली सबसे बेस्ट थिंग क्या है 1% में, एक कम्युनिटी है। कम्युनिटी पे जाइए, आपको जो भी आपका सिली से सिली क्वेश्चन है फाइनेंशियल के लिए, फाइनेंस को लेके, आप वो पूछ सकते हैं। हमारे फाइनेंशियल नर्ड्स हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया से, तो आपका वो हेल्प करेंगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपके वो डिफरेंट आइडियाज़ देंगे कि हाँ इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इस प्रोग्राम को, इस प्लान को। कोई भी आपका कोई एक्टिविटी है, कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, आपका कोई टारगेट आने वाला है, उसको कैसे अचीव करना है, तो आपकी हेल्प करेंगे। तो वो बहुत अच्छा है 1% में, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। आपने सिलियस सवाल क्या पूछा है कम्युनिटी में? सबसे सिली मतलब लाइक स्टार्टिंग में आके ही कि जो ये हम कोई भी अपना लाइक मेरे पास सैलरी ही स्टार्टिंग में कि 10,000 है, 10,000 में मैं 8,000 तो खर्चा कर रहा हूँ, मैं 2,000 से 1 करोड़ कैसे अचीव करूँ। तो पर किसी का रिएक्शन ऐसा नहीं आता वहाँ पे। अच्छी बात यही है कि आप कम्युनिटी में हो और उनको ये मतलब डेली हैबिट है लाइक कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसलिए वो इजी रहता है। तो फिर वो पूरा आपको प्लान बना के देंगे कि हाँ ओके आपको 2,000 इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आपको क्या क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ कहाँ करना चाहिए और कब तक आप अचीव कर लोगे। जल्दी अचीव करना है तो आपको कहाँ स्टेप अप करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप अपने करियर में ग्रो कर रहे हो, तो आपकी सैलरी भी इंक्रीज होगी, आपके डिफरेंट एसेट्स भी इंक्रीज होंगे, तो आपको आइडिया लगेगा कि कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो वो सबसे बेस्ट पार्ट कम्युनिटी। सो आफ्टर जॉइनिंग दी 1% क्लब तरनजीत, व्हाट वुड यू से यार कि कोई लेमैन भी क्या अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकता है विद व्हाटएवर सैलरी दे हैव? लाइक इज इट इजी? मतलब ऐसा एक्चुअली बनाया तो ऐसा गया ये, नॉट अ 1% क्लब, बट जैसे हम फिनफ्लुएंसर्स देख रहे हैं, हम इंस्टाग्राम में देख रहे हैं, यूट्यूब में आजकल भरा हुआ है। आप खोलो, कोई आपको पूरा ऑप्शन ट्रेडिंग करवा देंगे, आपको इंट्राडे करा देंगे, सब कुछ करा देंगे, बट आपको आइडिया नहीं लगता है। जब आप खुद करने जाते हो, जब आपका खुद का पैसा लगता है ना, हार्ड अर्न मनी, और जब वो गिरता है तो आपको दिक्कत होती है, तो आपको टेंशन होती है, स्ट्रेस आता है, तो आपकी मेंटल पीस भी जाएगी, फैमिली में भी इश्यूज आएंगे, तो काफ़ी इशू आएगा वो। तो 1% क्लब ज्वाइन करने के बाद इसका बेनिफिट सबसे बेस्ट यही हुआ है कि आपको वो हैंड होल्डिंग कर रहे हैं इनिशियल बेस, स्टार्टिंग में ही। स्टार्टिंग में 1 वीक 2 वीक हैंड होल्डिंग आपकी बूट कैम्प में होगी। उसके बाद आप कम्युनिटी पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपकी सारी एकेडमी में मॉड्यूल्स हैं, आप रेगुलरली मॉड्यूल्स करिए। शशांक हमें एक्चुअली वीकली वो वेबिनार्स लेता है टू अपडेट द स्टेटस ऑफ द मार्केट करंटली। तो उससे क्या होता है कि हमें आइडिया लग जाता है कि अच्छा अब इस वीक, मतलब अभी जो पिछले 7-10 दिन में हुआ है, ये हुआ है, और हमें किस वे में कोई भी हमें कंपनी सुनने में आई कि ये कंपनी तो मल्टी बैगर होगी है या ये हो जाएगी, तो हमें उसको कैसे चेक करना है। देयर इज अ प्रोसेस, देयर इज अ फ्लो कि आपको ये चीज़ें स्टेप करनी पड़ेंगी, आपको फंडामेंटल्स देखने पड़ेंगे, आपको कंपनी देखनी पड़ेगी, उसके बेसिक्स देखने पड़ेंगे कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और ये आपके किसी गोल को अचीव करने में हेल्प करेगी नहीं करेगी। तो ये सबसे बेनिफिशियल है। और अच्छी चीज़ इसमें क्या है, कुछ ऐसे वेबिनार्स होते हैं, आपको इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है। क्योंकि इन्वेस्टिंग में यस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरे हिसाब अकॉर्डिंगली है इमोशंस को कभी भी इन्वेस्टमेंट के साथ आपको क्लब नहीं करना चाहिए, मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि इमोशंस हैं जो आपकी इन्वेस्टमेंट की लॉन्ग जर्नी को मतलब पूरा डाउन ले आएंगे। क्योंकि आप देखेंगे आप हर रोज मार्केट देख रहे हैं, अप डाउन हो रही है, आपको स्ट्रेस होगा, आप किसी से सुनेंगे बाहर से कि ये तो भाई कंपनी डाउन होने वाली है, या ये म्यूचुअल फंड का इशू आ गया है ऊपर हायर लेवल पे, तो आप इसमें से पैसा निकाल लीजिए। पैसा निकाला, नए पैसे में डाला, बट आपका वो कंपाउंडिंग का बेनिफिट गया, तो आप अचीव नहीं कर पाएंगे। तो वो इमोशंस को आपको मिक्स नहीं करना है। तो उसके ये वेबिनार्स होते हैं रेगुलरली, मंथली वीकली वेबिनार्स होते रहते हैं। तो आपने वो चीज़ सीख ली है तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि लाइक आपके इन्वेस्टमेंट्स सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, आपको मार्केट को कितना देखना है कितना नहीं देखना है। क्योंकि हमारी प्राइमरी अर्निंग 9 to 5 जॉब से है। करेक्ट, बिल्कुल। तो इसमें हमें स्टार्टिंग में बताया गया लाइक आपको कौन सी
इंश्योरेंसेस करनी चाहिए जो एक्चुअली रिक्वायर है आपकी फैमिली के लिए। तो हमें आइडिया लग गया कि लाइक पहले तो LIC का कोई इंश्योरेंस हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर उसका XIR देख रहे हैं हम, कुछ भी देख रहे हैं रिटर्न, तो बहुत कम है, वो FD को भी बीट नहीं कर पा रहा है। बट हमें आइडिया नहीं होता कि हमें नंबर्स दिखाए जाते हैं कि लाइक आप 30 साल बाद करोड़पति बन जाओगे, आप ऐसा बन जाओगे, ये हो जाओगे, तो हमें नहीं आइडिया लगता उस टाइम पे। बट जब आप डाटा पे जाओगे, नंबर्स पे जाओगे, तब आपको आइडिया लगेगा कि नहीं, ये मेरे से गलती हो चुकी है, अब मैं इसको रिटर्न करूं, स्टॉप करूं, क्योंकि सरेंडर वैल्यूज बहुत डाउन होती हैं, तो आपको लॉस बुक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपको आइडिया नहीं लगता है। बट 1% आने के बाद तो मुझे आइडिया लगा कि लाइक हमें सिर्फ बेसिकली 2 इंश्योरेंस चाहिए, टर्म इंश्योरेंस और एक हेल्थ इंश्योरेंस, दैट्स इट। इंश्योरेंस के नाम पे और कुछ नहीं चाहिए हमें। तो सबसे पहले मैंने वही स्टार्ट किया, लाइक मुझे टर्म इंश्योरेंस करवाई है और हेल्थ इंश्योरेंस करवाई है पूरी फैमिली की, फ्लोटर प्लान लेकर। तो उसके बाद फिर स्टार्ट इन्वेस्टिंग, प्लान बनाए अपने कि ये प्लान मुझे अचीव करने हैं, कितना टाइम लगेगा मुझे अचीव करने में, तो उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट क्या करनी पड़ेगी, तो वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी और सही वे में कर लिया उसको। फिर रेगुलरली मैं चेक करता हूँ बस, तो इसलिए ईजी हो जाता है। तो 1% ने काफ़ी ये लाइफ सॉर्टेड कर दी। So do you have a fire number as well for yourself? यस, मुझे फायर नंबर के बारे में भी शरण की ये रील्स से आइडिया लगा था कि कुछ फायर नंबर होता है। तो लाइक मेरा है अराउंड 11 करोड़, 11C, Okay. जो मुझे चाहिए होगा आफ्टर 60। Okay. तो सेम लेवल मेंटेन करने के लिए। तो अब उसको अचीव करने के लिए उसको भी मैंने टारगेट्स में, गोल्स में डिवाइड कर लिया है कि लाइक ये है। तो मुझे पता है कि मेरे गोल्स अगर अचीव हो रहे हैं टाइमली, तो मेरा एक वन ऑफ दैट गोल इज फायर, दैट विल बी अचीव्ड ऑटोमेटिकली। तो उसका पता है, आइडिया है। So what advice would you give to a young person, let's say a 24-year-old, who wants to start planning for their fire number? एक्चुअली उनके पास सबसे बेस्ट थिंग क्या है, कोई भी यंग है 24-25 ईयर्स का है, तो उसके पास है एज, तो उसका इन्वेस्टिंग का हॉरिजॉन बहुत ज़्यादा अच्छा है, लाइक 35 to 40 ईयर्स वो इन्वेस्ट कर पा रहा है, तो वो फायर नंबर बड़ी इजीली अचीव कर लेगा। बट आपको एक अकेला फायर नंबर पे ही नहीं देखना है, आपको और चीज़ें भी देखनी है लाइफ में, कि ये नहीं कि आप पहले रेस में लग जाए कि मुझे वही वो 10 करोड़ या 15 करोड़ जो भी आपका नंबर आ रहा है आपकी स्पेंडिंग के अकॉर्डिंगली, कि मुझे पहले वो अचीव कर लूँ, मैं फिर लाइफ को एंजॉय करूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। Right, okay. आपको रेगुलरली वो भी करना है। तो वो एक नंबर है, अचीव करिए, सही डायरेक्शन में जाइए और इमोशंस को अलग रखिए, इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखिए। कुछ भी हो जाए, आपको फिक्स आपका 30% 40% आपका जो है सैलरी का आपको इन्वेस्ट करना ही करना है। Okay. आपको डेफिनेटली एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए, जिसके कारण आप अपने म्यूचुअल फंड्स को टच ना करें, और तब फिर रेगुलरली वो SIP करते जाएं, स्टेप अप करते जाएं रेगुलरली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली, जैसे भी आपको लग रहा है आपको नंबर कैसे अचीव करना है, कितना बड़ा नंबर है आपका, और वो आप जल्दी अचीव कर लेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हम सोशल कंपनीज में हैं, हम जॉब कर रहे हैं, हमें यूट्यूब देख रहे हैं, सोशल मीडिया है, तो आपको कहीं ना कहीं से एडवाइस आती जाएगी कि भाई ये एक शेयर है, ये तो मल्टी बैगर होने वाला है, ये तो 100x होने वाला है। करेक्ट। बट हम हैं रिटेल इन्वेस्टर्स और हमारी है वो हार्ड एंड मनी, बहुत मुश्किल से कमाई गई है, तो हम ऐसे एडवाइसेस से बच के रहे। टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, आपको कहीं से भी आ रहा है कि ये यहाँ पे बुक करिए, ये शेयर्स को ले लें, आपका मल्टी बैगर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। वो आपके कान आंख सब खुले रहने चाहिए, आपको एडवाइस लीजिए, राइट, बट अपना प्रोसेस एक बना के रखिए कि मुझे ये फॉलो करना है, मुझे उस प्रोसेस के थ्रू उस शेयर को, उस एडवाइस को चेक करना है, क्या वो मेरा कोई गोल अचीव कर रही है, या मेरे गोल के लिए जो मैंने शेयर्स या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हुई है इक्विटी में, तो उसको वो रिप्लेस करने के लिए है, इतना है सॉलिड वो कि वो मेरे उस कोई इक्विटी में कोई भी शेयर है उसको ये रिप्लेस करेगा, या मैं सेम सेक्टर में इन्वेस्ट तो नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे वो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और हम रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हम कोई बिग शॉट्स तो है नहीं, तो हमारे पास जो वो एडवाइस आ रही है वो उसके बाद आ रही है जब वो वैल्यूएशन वैसे ही उसकी बहुत हाई हो चुकी है।